I welcome everybody to this webinar of learning about herbs, how to grow herbs, how to use them in our regular life, and also how to use them for healing ourselves. And in this webinar, I take pride in introducing my colleagues, my friends who are also agri teachers, Rakhi Mittalji and Ritu Mishra ji. So let me introduce you to Rakhi Mittalji. Rakhi Mittalji, uh, are you there? I can put you on spot. Yeah, Savita ji, I'm here. Yeah. Yes, Rakhi Mittalji. Savita ji, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Rakhi ji is a farmer and she's agripreneur and she's gopalak. She's also rearing cows and that also desi cows. And she does gardening. She has a lot of gardening farming videos on YouTube, and she has over 3 million followers on her YouTube and she has over 8 years of experience. And I know her personally. She is a great mother. She is a great homemaker and also a great person, and she has this amazing passion for farming, and that also natural farming. So I'm very happy for her to be here. I also invite Rituji, and Rituji is also today's one teacher on the webinar. She is also an amazing friend. She is a nutritionist, and over the years she has developed passion for wellness and chemical-free rooftop gardening. She grows a lot of vegetables on her rooftop itself. She's a trainer for children and teenager with Art of Living Foundation, and also a home gardener trainer with SIST Trust. So here we all represent SSIST Trust, and I also am an agri teacher. And here I can just tell a little bit about myself, that I am Apex member for Agriculture Trust. I am looking after the Delhi NCR, where I am coordinating a lot of our programs, which is being done by Shri Shri Institute of Agricultural Science and Technology. So these programs are helping farmers to grow natural food, to guide them how to grow, to do hand holding, and for the upliftment of farmers, and also encourage natural farming among all natural farming, and even among home gardeners, how to grow food within their homes, in balconies and rooftops, how to use whatever space they have to grow organic food. And I've been with Art of Living for 16 years, and I have been state coordinator for 4 years. And I also have passion for environment, for natural food, for natural gardening, and I am also a yoga enthusiast with lot of, I am an international yoga teacher, and with lot of interest in Ayurveda. So you can say I'm an Ayurveda enthusiast and really want to use all these natural herbs for our better health and better life. So now I invite Rakhi ji. She will introduce us to some beautiful herbs which we can use in our life, day-to-day life, and which are like amazing. She will tell how to grow, and also something about their properties and their. Thank you, Savita ji. And it's a pleasure and honor to conduct this webinar with you. And now, participants, hello everyone. And as you all know that the purpose of this session is to know about herbs and to how to nurture it, then how to use it. Probably most of us will be knowing about some herbs and probably. So, can you see me, everyone? Yes, we can see you, we can hear you. Everything is well. My screen got off. So just a second. Give me a few moments. Yes. I'll be back. So the basic thing is we should also know how to use it in our day-to-day life, which Rituji will be taking, and Savita ji will be illustrating their benefits, the Ayurveda way, as she's a Ayurveda enthusiast herself.
So now let me show what all herbs I am growing at my home. So these are few herbs that can easily be grown in small spaces. Like this is Aparajita, and this is a seasonal herb, and this is the right time to sow it. And if you have already sown, then this is the time of blossoming of this herb. This is Aparajita. Then we'll be taking Ashwagandha. I'll be showing you separately also what are how can you recognize them, how can you identify them. Then this is a very commonly used herb, that is Pudina, that we use in day-to-day life. Summer में खासकर ये काफी ठंडक देता है, and it's very beneficial to use. This is the big Pudina plant in a 12 inches pot. Then तुलसी हम सबके घर में होती है अक्सर, and we know a lot of how to use tulsi also. We know a lot of recipes and concoction of tulsi also. This is peppermint. Peppermint also have menthol in it, and ये बहुत ही ठंडक देता है गर्मी में यदि हम इसको लेते हैं. एंड इसको यदि आप क्रश करके भी लगा लेते हैं अपने सर में, हेडेक में, तो ये इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है. तो इट्स अ गुड हर्ब टू हैव इन योर गार्डन, इन योर होम्स और balconies. This is curry patta. Everyone knows about it. Probably I assume that everyone must be knowing. This is a very commonly used herb in Asia. And this is red rose. ये देसी गुलाब है, और ये वाला गुलाब है पर्टिकुलर जो कि हम मंदिरों में यूज करते हैं भगवान को चढ़ाने में, पूजा में, बिकॉज इस गुलाब का मेडिसिनल यूज है. सो दिस इज अ हर्ब. दिस इज ऑल्सो अ हर्ब. Along with its aesthetic value, it also have herbal value. Then we know about hibiscus और जावा कुसुम. ज्यादातर लोग हम में से इस फ्लावर को पहचानते होंगे. दिस इज जावा कुसुम और हिबिस्कस और गुड़ल. काफी नामों से ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसको जाना जाता है. एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो इसको बहुत नामों से जाना जाता है. आजकल इंटरनेशनली बहुत फेमस है इसकी टी. दिस इज हिबिस्कस. इसकी भी चाय बनती है. इट्स अ हर्बल प्लांट. हम इसको सिर्फ फूल के जैसे देखते हैं ज्यादातर लोग, बट जब आप इसको कोर्स को करेंगे आप इसको एज अ हर्ब देखने लगेंगे. Then this is lemon grass. ये ग्रास फैमिली का है, बट इसका जो अरोमा है ये लेमनी अरोमा होता है इसका, इसीलिए इसको लेमन ग्रास कहा जाता है. और इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज बहुत है, मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं, और इसको आप डे टू डे लाइफ में एज अ ग्रीन टी यूज करते हैं तो बहुत फायदा होगा. देन वी कम टू शतावरी. आयुर्वेदा में इसके बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है. तो एक चीज मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या हर्ब्स के बारे में समझते हैं, या कौन कौन सी हर्ब्स आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो आप लोग यूज कर रहे हैं. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. अजवाइन, ब्रह्मी, गिलोय, मोरिंगा, लक्ष्मी तरू, तुलसी, नीम, लेमन ग्रास, धनिया. राइट. और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हम कई बार समझते हैं जड़ी बूटियां शायद जंगलों में या कहीं पहाड़ों में ही मिलती हैं, राइट. पर ऐसा नहीं है. हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी किचन में मसालदानी है उसमें हल्दी, जिंजर, अजवाइन,
राई, जीरा, सौंफ, कोरिएंडर, सभी कुछ, पुदीना जो हम गर्मियों में इतना खाते हैं, ये सभी कुछ हर्ब्स हैं, यही जड़ी बूटियां हैं। तो हमारे जो एक चीज सोचने में आती है कि एंसेस्टर्स थे जिन्होंने हमको ये फूड सिस्टम दिया, जो हमने इनहेरिट किया है ओवर द जनरेशंस से पास हुआ है, तो ये कितना सोचा समझा उन्होंने हमारी लाइफ में इम्बाइब कर दिया। हम बिना जाने कि जड़ी बूटियां हैं, डेली उनको खा रहे हैं, राइट, और ये हमें फायदा भी दे रही है, कोई जानता है नहीं जानता, पर वो उसको यूज आ रही है। तो एक किस्सा है इसी बात पे, पुराने टाइम का, जो मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। पहले टाइम क्या होता था कि गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, और जो शिष्य होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो वहीं रह के पढ़ते थे। एंड ये गुरु का डिस्क्रिशन होता था कि व्हेन टू लेट देम गो, कब उनकी शिक्षा पूरी हुई है और कब उनको सर्टिफिकेशन देना है, वो गुरु के ऊपर होता था। तो एक शिष्य था वनस्पति शास्त्र का, यानी कि जो बॉटनी उस टाइम में पढ़ा सब्जेक्ट हुआ करता था, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी का स्टूडेंट था। कई साल उसने पढ़ाई की, और पढ़ते पढ़ते उसको लगा मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, तो अब तो गुरुजी को मुझे पीएचडी दे देनी चाहिए और विदा कर देना चाहिए। तो वो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब आप मुझे पीएचडी दे दो। तो जैसे आज भी होता है, गाइड्स के चक्कर लगाते रहते हैं पीएचडी के लिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुझे छुट्टी तो दे दूंगा गुरुकुल से, लेकिन पीएचडी नहीं दूंगा। क्योंकि एक शर्त रखी कि पूरी दुनिया में मेरे लिए एक ऐसा पौधा लेके आओ जिसका कोई उपयोग नहीं हो। तो जिस दिन तुम मुझे एक ऐसा पौधा ले आओगे जिसका उपयोग नहीं है, मैं पीएचडी तुमको दे दूंगा और तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तुम घोषित हो जाओगे वनस्पति जगत के। उसने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मैं। Rakhi ji, can you hear us? Yeah, so Rakhi ji is telling such a beautiful story and we have lost her. So we can like... You can do a quick recap and start over. Okay. तो क्या था कि वो पीएचडी के लिए गया और गुरु ने मना कर दिया, अभी नहीं, तुम पहले एक अनुपयोगी, बिना उपयोगी एक कोई प्लांट लेके आओ। वो गया, 20 साल लग गए, 20 साल बाद लौटा। गुरुजी ने कहा मिल गया? तो कहते हैं गुरुजी मैं समझ गया, ये जो प्रकृति है इसमें मैं आज तक भी एक भी अनुपयोगी प्लांट नहीं, यानी कि जो यूजफुल नहीं है, ऐसा कोई प्लांट नहीं ढूंढ के ला पाया। और मैं जितना इसमें सीखता जाता हूँ उतना ही मैं और लगता है कि मेरा ज्ञान और कम है। तो इतने रहस्यों से, इतने ज्ञान से ये प्रकृति भरी है और इतनी जड़ी बूटियों से, बस हम लोगों को क्या है उसकी नॉलेज नहीं है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लॉस भी हो गया ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम, वॉट एवर मे बी द रीजन। बट आज जब हमको वापस से ये रिवाइव हो रही है नॉलेज एंड साइंस, तो हम इसका यूज करना आना चाहिए। दैट्स अ लाइफ स्किल ऑल्सो। हमेशा मेडिकल स्टोर भागना छोटी छोटी चीजों के लिए, ये समझदारी की भी बात नहीं है, वो जो कि हम आसपास में ही ले सकते हैं। तो थोड़ा पहचानने की जरूरत है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहचान, सबसे पहला आता है पहचानना, और उसके बाद पहचान के उसको यूज करना। और यदि आप उसको लगा सको अपने ही आंगन में, तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। बिकॉज वो आपके एकदम पास में है, आप गए तोड़ के लाए इमीडिएटली, आपके पास में मेडिकल स्टोर है आपका घर में। ओके, जैसे मैंने बताया पेपरमेंट है, ये अक्सर मैं अपने सर पे क्रश करके इसकी पत्तियां अपने सर पे लगा लेती हूँ जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता है, हेडेक होता है, राइट। गुलाब है, गुलाब को इन्फ्यूज किया कप ऑफ स्टीम में, लाइक इन वार्म वाटर, बस उसको पी लिया। छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हाउ टू प्लांट पुदीना।
पुदीने से शुरू करते हैं, बिकॉज ये हमारे बहुत यूज में आता है और हमको ये बहुत इजीली अवेलेबल है। मार्केट से आप बंच लेके आते हैं पुदीना का, और उसको आप कैसे घर में लगा सकते हैं, यूज भी करें एंड देन आप उसको घर में भी लगाएं। Screen. Yes, Aparajita is a purple flower only. Yes, Renu ji. This is अपराजिता. See, जब हम बाजार से लेके आते हैं पुदीना, कुछ इस तरह से हमको एक बंच मिलता है, राइट? तो हमको क्या करना है, Rakhi ji, can you hear us? Yes, yes. Okay. जैसे ये हमने कुछ इसकी टहनियाँ ली और उसमें से कुछ अच्छी थिक टहनी हम निकाल लेंगे, एंड स्पेशली यदि ब्रांचेस वाली टहनी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहां से ये ब्रांचेस निकलती हैं वहीं से रूट्स निकलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पुदीना होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो नीचे तक होती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि लीव्स, नीचे वाला पोर्शन, नोड्स जो हैं ये एम्प्टी है। यदि नीचे लीव्स हैं तो आप इनको पहले ही प्लग कर दें, एंड बहुत ही जेंटली इसको प्लग करें, ऐसा नहीं लगे उसको चोट लगे, धीरे से ऐसे प्लग कर दें हल्का सा। ओके, इस तरह से कुछ डंडियां हम बंच बनाएंगे, एंड देन वील कीप इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। और ये ध्यान रखना है कि उस पानी में पत्तियां नहीं डूबनी चाहिए, नहीं तो पानी में सड़न आने लगती है, वो स्टेल हो जाता है जल्दी। और इस तरह से, और ग्लास पूरा नहीं भरना है हमें, थोड़ा सा ग्लास जितने की बस ये डिप हो जाए, ठीक है? इस तरह से इसको डिप करके आप रख दीजिए कहीं ठंडक वाली जगह में। ऐसी जगह ना हो जहाँ उसको गर्म लगे तो वो नहीं निकल पाएंगी रूट्स। तो विंडो सिल में आप रख सकते हैं, बेस्ट प्लेस है, क्योंकि उनको थोड़ी सनलाइट भी मिलेगी। ये मेरा एक प्लांट है जो कि मैंने किचन में ही रखा हुआ है, और इसको अब अराउंड 20 डेज, मोर देन 20 डेज हो गए। इस तरह से ये बहुत ज्यादा डेंस रूट है, लेकिन आप इसमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि इसमें इतनी डेंस रूट आएंगी। इसमें आपको बहुत छोटी छोटी शूट्स निकलनी दिखने लगेंगी 4-5 दिन बाद ही, व्हाइट कलर में शूट्स निकलेंगी। आप उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं सॉइल में, और यदि आप उसको किचन में ही रखें और थोड़ा थोड़ा प्लग करते रहें तो उसकी रूट्स डेंस होती जाती हैं, लेकिन आपको इसका पानी बदलना पड़ेगा ग्लास का ऑल्टरनेट डेज। तो इस तरह से ये आप रूट्स पहले प्रिपेयर कर लें। इन केस आप कहीं से कटिंग लेके आते हो, तो कटिंग लेके आनी है कहीं से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि काटना कहाँ से है, जहां से ये नोड्स निकल रहे हैं वहीं से आपको काटना है। इस तरह से ब्रांचेस जहां से निकल रही है वहां से कटिंग लाके लगाएं। कई बार क्या होता है कि लोग ऊपर से, जैसे ये थिन ब्रांच है, यहाँ से कटिंग लगा लेते हैं, लेकिन इसमें फिर चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये नहीं चले भी तो आपका लक है, लेकिन ये नहीं चलने के इसमें 80% चांसेस है। तो ये देखिए कि स्टेम थोड़ा थिक हो जब भी आप पुदीना डेवलप करें रूट्स। और उसके बाद हम इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो सॉइल मिक्सचर में इसके हमको लेना होता है सॉइल, कंपोस्ट एंड सैंड। ये हमारी सॉइल है, एंड दिस इज कंपोस्ट। होममेड कंपोस्ट भी हो सकता है, काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ओके, now we'll prepare the pot for this.
And this is our sand. So we have soil, compost and sand. और हम इसको equally लेंगे. तो पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्लांटर तैयार करने के लिए, जो होल्स हैं आपके पॉट में, यदि नहीं है तो होल्स करना जरूरी है, बिकॉज पानी रुकना नहीं चाहिए. यदि पानी गमले में रुकेगा तो रूट रॉट होगी और पेड़ पौधा चल नहीं पाएगा. तो हम नीचे पहले इसके, ऑलरेडी इसमें होल्स हैं, क्योंकि ये मैं अपनी नर्सरी के लिए तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है. लेकिन बेस्ट रहता है यदि आप मिट्टी का पॉट लें, और मिट्टी का नहीं मिलता है देन आप प्लास्टिक पे जाएं या कोई और मटेरियल पे जाएं, क्योंकि लाइट वेट होते हैं दूसरे मटेरियल और मिट्टी में थोड़ा वजन होता है. तो इस तरह से हम पहले इसको बंद करेंगे. अब पहले हम सॉइल मिक्स बना लें. तो आई टेक इक्वल पार्ट्स ऑफ सॉइल. कंपोस्ट, 2 मुट्ठी मैंने सॉइल ली, 2 मुट्ठी कंपोस्ट ली. एंड यदि रेत नहीं मिल पाती है तो आप कोकोपीट डाल सकते हैं. और मैं पुदीने के साथ में रेत को प्रेफर करती हूँ, लेकिन यदि नहीं है तो आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें. कोकोपीट विल एड मोर कार्बन टू द सॉइल. देन इसको अच्छे से मिक्स करके रेत जो डालते हैं हम, उसका पर्पस होता है कि रूट्स को पोरोसिटी देना, उसको स्प्रेड होने के लिए. वही चीज कोकोपीट भी काम करता है. ये ऑलमोस्ट 6-7 इंचेस का पॉट है और इसमें 1 से 1.5 किलो मिट्टी आ जाती है जब आपकी मिट्टी लाइट वेट होती है, अलॉन्ग विद कोकोपीट, सैंड एंड compost. So now our soil is ready. ये हल्की सी moist है already soil. अब हम इसको, जो मैंने ऑलरेडी इसमें रूट्स हैं, कितने डेंस रूट्स हैं मेरे, लेकिन आपके शायद छोटे ही रूट्स होंगे, तो पहले मैं ये दिखाऊं. यदि छोटे रूट्स निकलते हैं तो आपको कैसे लगाना है. यहाँ पे आपके रूट्स निकलेंगे, ये नोड्स पे आपके थोड़े थोड़े रूट्स निकलेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा तिरछा करके लगाएं. जब भी आप लगाएंगे सॉइल में थोड़ा उसको टेढ़ा करके लगाएंगे. तो अभी मैं रूट्स वाला लगा रही हूँ. जितना हो सके आप इसको, रूट्स को सबको मिट्टी में दबा दें. और यदि बड़ा गमला है तो ये जो फैली हुई है आपकी जो टहनियाँ, उसको भी आप थोड़ा सा मिट्टी में दबा सकते हैं. वहां पे भी रूट्स पकड़ लेगा और वहां से शूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. तो इस तरह से ये हमारा पुदीने का गमला तैयार हो जाता है. तो ये 15 डेज में आपको आपका गमला तैयार मिल जाएगा. और आफ्टर 1 मंथ आप इसमें शुरू करें. जब आप देखें कि इसमें नई फुटेर ज्यादा हो रही है, तब आप इसमें पिंचिंग शुरू करें, यूज करना शुरू करें. और जितना आप इसका ये आगे का पिंच करके यूज करेंगे, इस तरह से इस बंच को आप जब पिंच करके यूज कर लेंगे तो इसकी जो नई शूट्स निकलेंगी वो साइड से, नीचे से निकलेंगी और आपका पौधा और ज्यादा घना होगा. और इसको क्या चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो इसको मॉइस्चर चाहिए, कांस्टेंट मॉइस्चर, बट आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. और सनलाइट चाहिए इसे. आप इसको एक दिन सेमी शेड में रखिए और फिर आप इसको सनलाइट में रखना जरूरी है इसकी ग्रोथ के लिए.
सो ये हमारा हो गया पुदीने का पौधा तैयार। एंड इसके कई यूजेस हैं और मेरे ख्याल से ये दुनिया के हर कोने में इसको यूज किया जाता है। बहुत ही एंशिएंट हर्ब है। नाउ वी गो ऑन टू लेमन ग्रास। मैंने जैसे आपको सैंड का सॉइल प्रिपरेशन बताया था, पॉट में होल्स होने चाहिए, नीचे होल्स को बंद करना चाहिए। और ये है अब कोकोपीट के साथ में सॉइल मिक्सचर, ये ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखा है, ये पॉट प्रिपेयर कर रखा है। और अब इसमें हम लगाएंगे लेमन ग्रास। तो जब हम नर्सरी से लेके आते हैं लेमन ग्रास रूट से भी प्रोपोगेट होता है। आपको कहीं इसकी रूट मिल जाती है और कई जगह इसकी रूट खाई जाती है, लाइक थाई क्विजीन में, चाइनीज में। तो आपको रूट मार्केट में भी मिल जाती है। तो उस रूट को लाके आप सीधा एक सॉइल प्रिपेयर करके और आप अपने पॉट में लगा सकते हैं। तो जब भी नर्सरी से लेके आते हैं तो वो कई बार थैली में होता है या किसी पॉट में होगा। थैली होगी तो आप उसको कट करेंगे साइड से, थैली को रिमूव करेंगे एंड देन आप उसको मिट्टी में डाल देंगे। लेकिन यदि पॉट में है और पॉट से ट्रांसप्लांट करना है, प्लास्टिक का पॉट है, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह से पहले यूज कर लें एंड देन इसको इस तरह से पलटें और पीछे से थोड़ा सा ठोक देंगे तो ये आपका निकल आया, राइट। एंड देन आप इसको सेट करें। वाटरिंग जरूरी है किसी भी पौधे को सेट करने के बाद में। एक बार डीप वाटरिंग कर देते हैं जब सेट होता है। अभी मैं इसमें लाइट वाटरिंग कर रही हूँ, इसको बाहर रख के मैं इसको डीप वाटरिंग कर दूंगी। लेमन ग्रास में आपको 1 महीने बाद करीब 20 to 21 डेज यदि आपकी सॉइल में अच्छी कंपोस्ट है तो शूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये एक रूट से आपको कई शूट्स मिल जाती हैं। और लेमन ग्रास की रूट्स भी खाई जाती हैं, शूट्स भी खाई जाती हैं। ये स्टॉक जो नीचे का होता है, और इसकी लीफ भी चाय बनती है, जो रितु जी आपको डिटेल में बताएंगी। Now we come to शतावरी। शतावरी एक बहुत ही मेडिसिनल हर्ब है एंड बहुत ही सुंदर भी लगती है। इसकी रूट्स काम आती है वैसे आयुर्वेदा में, लेकिन आप इसको घर में लगाते हैं तो ये आपकी घर में बहुत ही सुंदर लगेगा। क्रीपर है क्योंकि ये वाइन है, और इसमें आपको मेंटेनेंस बहुत कम है। इवन लेमन ग्रास में भी मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, और इसमें भी मेंटेनेंस कम होता है। तो कुछ ऐसे पौधे जिसको आपने एक बार लगा दिया और वो पानी दे रहे हैं, थोड़ा कभी कभार खाद दे रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो अच्छा रहता है। तो ग्रीनरी घर में बनी रहती है, दैट्स व्हाई। सो इसका क्या होता है, इसका रूट काम में आता है। This plant is शतावरी। या दिस इज शतावरी। शतावरी का मतलब होता है, शत मतलब 100, और जिसकी 100 रूट्स हैं उसे शतावरी कहते हैं। जब ये सॉइल में ग्राउंड में जाता है तो इसकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे मूली होती है ऐसी लंबी लंबी रूट्स होती हैं। अब ये क्योंकि ये मेरे गमले में प्लांट है तो इसकी रूट्स आप देखिए, ये ऐसे लंबी लंबी रूट्स होती है इसकी। और
सॉइल गीली थी इसलिए स्टिकी है थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो रूट्स हैं ये यूज होती हैं इसकी, ड्राई करके इसका पाउडर बनाया जाता है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। और यदि आपके घर में है तो आप इसकी रूट्स को निकाल लें। विंटर में ये पौधा ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, तब आप इसकी रूट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी रूट्स को हार्वेस्ट करके आप ड्राई करके पाउडर बना के घर में रख सकते हैं। और इसका बहुत 1 पिंच या 2 पिंच पाउडर यूज होता है, तो थोड़ा सा भी घर में हो जाता है तो आपके लिए यूजफुल है। इसकी भी ये रूट से प्रोपगेट होता है और सीड्स से भी होता है, लेकिन जनरली बेटर है रूट से, बिकॉज ग्रोथ जल्दी होती है उसमें। राखी जी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में गूगल सर्च करना पड़ेगा। Shatavari, English में I could not find it actually translation, but आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको एस्पेरेगस है इंग्लिश में। ये जो नॉन एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस की फैमिली का ही ये पौधा है। You are right. एस्पेरेगस में कई वैरायटी होती हैं, एक में राउंड रूट्स होती हैं और ये लॉन्ग रूट्स वाला एस्पेरेगस है। एंड इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी लोग घर में लगाते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये हर्ब है, यही शतावरी भी होती है। और इसकी रूट्स आपको कई बार फेंकी हुई मिलेंगी, माली लोग इसके रूट्स निकाल के और इसको फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, इट इज शतावरी। शतावरी जिसके 100 रूट्स हैं, सो अब हम इसको वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग हर बार प्लांटेशन के बाद जरूरी है टू सेट द प्लांट इन। और वाटरिंग तब तक करते हैं जब तक कि वो पानी नीचे ना निकल जाए। लेकिन जब एक बार उसको दे दिया पानी, उसके बाद आपको कब देना है पानी, जबकि आपको लगे कि ऊपर से थोड़ा ड्राई है। सॉइल को ड्राई नहीं होने देना है, मॉइस्चर रहना है, लेकिन मॉइस्चर जस्ट खत्म होते ही आपको इसको पानी देना है। बिकॉज जब जस्ट ट्रांसप्लांटेड पौधे होते हैं तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि रूट्स उस वक्त डेवलप हो रही होती हैं। सो हमको वो चीज ध्यान रखनी है कि उनको सूखने नहीं देना है। जब तक कि इसमें से नया किल्ला नहीं निकलता, एक नई शूट नहीं निकलती, तो वो साइन है, जब शूट निकलने लगती है वो साइन है कि उसकी रूट ने मजबूती पकड़ ली है। ओके, तब आप उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, वाटरिंग भी आप कम कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग से भी पौधा मरेगा, अंडर वाटरिंग से भी मरेगा। ये बैलेंस हमको बना के चलना है गार्डनिंग में। So now we come to अपराजिता। अपराजिता से एक बात याद आई, अभी मोदी जी ने लगाया था अयोध्या में पारिजात का पौधा। काफी लोग उसको अपराजिता से कंफ्यूज कर गए थे। पारिजात होता है हार श्रृंगार एंड अपराजिता होती है, ये सीजनल प्लांट है अपराजिता। एंड इसके जो फूल होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये इसमें 3 तरह के कलर्स होते हैं फूल के, पिंक, ब्लू एंड व्हाइट। अभी मेरे पास में ये ब्लू कलर का अपराजिता है और इसको कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है, कृष्ण कांता, कृष्ण प्रिया, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। और जो व्हाइट कलर का होता है उसे विष्णु कांता कहते हैं। ये पूजा में बहुत काम आता है और अभी तक लोग इसको पूजा की ही वस्तु पूजा का ही फूल समझते थे। लेकिन यदि हम देखेंगे बाहर, ये $10 का 10 ग्राम्स मिलता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसको कैसे लगाया जाता है? इसको सीड से लगाते हैं। पहला तरीका, जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग के बाद पॉड बनता है मटर के जैसे, जैसे आप ये देख रहे हैं, और जब ये सूख जाता है तो इस तरह का ये पॉड बनता है। और इसको आप इसी स्टेज में हार्वेस्ट कर ले, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये पॉड क्रैक होके अपना सीड छोड़ देता है। इस तरह से इसमें ये सीड्स है। इसमें ऑलमोस्ट 7 सीड्स हैं, आपको 10 तक भी मिल सकते हैं, 5 to 10 सीड्स, इस तरह से आपको सीड्स मिलते हैं। तो आप सीड हार्वेस्ट कर लें इसके जब भी सीजन जाता है। पीक विंटर्स में ये
सरवाइव नहीं कर पाता फ्रॉस्ट में और विंडी कोल्ड विंड्स में। तो आप इसके जब फली है इसको हार्वेस्ट करके रख लें। इसका सीड भी मेडिसिन है, इसका पाउडर काम आता है सीड का, एंड इसका चाय बनती है। और जो इसकी लीव्स हैं इसको कैसे पहचाने आप, पार्कों में भी आपको मिल सकता है, रोड साइड में मिलता है, ये कई बार वीड्स भी होता है कहीं कहीं पे। ये इसका जो पत्ता है ये ओवल शेप होता है। इवन ये पत्ता भी स्किन के लिए यूजफुल होता है। कहीं कहीं इसके पत्ते को भी पेस्ट बना के आंखों पे रखा जाता है। और आप घर में इसको लगाएंगे तो ये घर की ब्यूटी तो बढ़ाएगा ही और आपको एक अच्छी चाय भी बना के देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्ब्स एंड अच्छा एक और चीज थी, अश्वगंधा। ये देखिए अश्वगंधा आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बिकॉज ये इम्यूनिटी बूस्टर के जैसे आजकल चल रहा है और लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। ये अश्वगंधा है क्या एक्चुअली, ये एक वीड है। जो लोग इसको जानते हैं वो उसको रोड साइड से भी उठा के अपने घर में लगा सकते हैं। और ये नर्सरीज में मिल सकता है आपको। और इसका जो प्रोपोगेट करने का होता है ये इसको मैंने अपने ये स्प्राउट होने लगता है तो मैं इसको निकाल के अपने गमले में ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छा इसका मैं आपको एक वीडियो बनाती हूँ कि ये कैसा दिखता है जब ये बहुत फुली ग्रोन हो जाता है, जिससे कि आप इसको आगे पहचान सकें। फ्रूट होता है ये आपको दिखेगा, जैसे ये इसका लीफ है, आपको छोटे चेरी टमाटो जैसा इसका फ्रूट होता है और इसका बीज भी इसी के अंदर होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिपिंग आपको आइडेंटिफाई कर सके आप। और इसका जो रूट आप देख रहे हैं नीचे, ये रूट यूज में आता है जब ये प्लांट ड्राई आउट हो जाता है। इसके बीज आप कलेक्ट करके रख लें। ये इसका पॉड है और ये मटर के जैसा इसका हरा दाना जो कि बाद में लाल हो जाता है। ये देखिए लाल ऐसे हो जाता है ये। ये टमाटर के जैसे इसके बीज हैं छोटे। इसके बीज आप हार्वेस्ट करके रख लीजिए और जो इसकी रूट है ड्राई आउट होने के बाद में ये रूट को आप रख लें। इसको आप पाउडर बना के इसको रूट को आप पिंच और 2 पिंच आप लें तो ये आपके लिए फायदेमंद है। हमेशा ये ध्यान रखना होता है हमें, जब भी हम कोई जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं उसका जो मात्रा है वो थोड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। जब तक कि आपको कोई वैद्य प्रिस्क्राइब नहीं करे तब तक आपको मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको सिर्फ पिंच और 1 या 2 पिंच आप उसको इस्तेमाल करें। So Rakhi ji, हाँ जी। what I can do is once your presentation is over, na, so I will be telling about some Ayurvedic uses for these herbs. So whichever herb I'm talking about, you can keep that live in front so that people understand ki which is the herb I'm talking about. And after that, Ritu ji will present her teas. ठीक है, ठीक है। Rakhi So ji, now, question. yeah, I'm done with the herbs and सिर्फ इतना बता दें कि आपने जो अभी अश्वगंधा यूज किया है उसको स्टेम से लगाया जा सकता है या नहीं? देयर इज अ क्वेश्चन। स्टेम से नहीं लगाया जा सकता, इसको आप रूट से ही लगाएं। ओके, ठीक, थैंक यू।
सविता जी? Yeah, should I show? Okay. हाँ जी, please continue. So, Rakhi ji, that was a very extensive, display of the plants, of the herbs. और आपकी वो जो story थी मुझे इतनी touch करी, and I had heard it before also कि कैसे वो उन्होंने गुरु ने कहा कि ऐसा कोई पेड़ लाओ जिसको यूज ही नहीं हो, ऐसा कोई पौधा पेड़ हो। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में सबकी एक अपनी जगह है और सबका अपना यूज है। और हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे जिन्होंने हमारे सारी दवाएं हमारे नेचर से बनाई, हमारे जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो आसपास हमारी प्रकृति है, उसी से ही सारी दवाएं, क्योंकि उसी से हम बने, 5 तत्वों से सब बना है। और इन्हीं तत्वों से हमारा भी जो है हमारा शरीर है, इन्हीं तत्वों से पेड़ पौधे बने और इन्हीं में हमारी दवाएं भी, औषधि भी छुपी है। तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट आई वांट टू टेक यू टू व्हाई वी यूज डिफरेंट हर्ब। तो आयुर्वेदा का मतलब क्या है? आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ लाइफ। हमारी आयु को बढ़ाए, आयु अच्छे से हम जीवन जिए और एक बहुत ही 100% जीवन जिए। हमारा आयुर्वेदा इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम दवाएं खाएं या हम बीमारियों को ठीक करें। आयुर्वेदा का मतलब है कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें हमें दवा खाना ही नहीं पड़े। मतलब वी कीप ऑन टेकिंग दीज हर्ब्स, जैसे अभी उन्होंने शतावरी बताई, अश्वगंधा। अगर हम अपने जीवन में ये सब थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं तो हमें औषधियों की जरूरत नहीं होगी और हम जो है अपने जीवन को बहुत ही सुंदरता से जी पाएंगे। साथ में जब कभी कोई हमारे को डिजीज, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इन हर्ब्स का सही तरीके से उपयोग करके अपने को ठीक कर सकते हैं। तो हम आई विल टेक यू टू एवरी हर्ब अ लिटिल बिट, 1 or 2, बिकॉज अपने आप में अगर ये जितनी हर्ब्स राखी जी ने बताई हैं, इनकी अगर हम किताबें लिख सकते हैं, इन पे एक एक पे, लाइक अश्वगंधा पे किताब लिखी जा सकती है, शतावरी पे, एंड दे हैव hundreds of views. But today, I will take you just telling you about each herb's few of its property and like 1 or 2 of its benefit. So like now I will request Rakhi ji to show ashwagandha. You can show your ashwagandha. So हम अश्वगंधा को लें तो अश्वगंधा जो है उसको इंग्लिश में विंटर चेरी कहते हैं और इसका नाम घोड़े की सुगंध, मतलब अश्व की गंध है, क्योंकि उसमें सेम स्मेल है। और इसका ऋषि मुनियों ने ये नाम क्यों रखा है? क्योंकि उसकी पौष्टिकता है, उसकी हम घोड़े जैसे हॉर्स पावर हमारे में आ पाए। तो ये बहुत पावरफुल है, ये हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह में स्ट्रेंथ देता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया फाइट करता है, फाइट्स इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इट्स एंटी कैंसरस। और ये हम सभी जानते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग कैंसर एंड कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड हेल्प्स इन ऑल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हेल्प्स इन रिलीविंग पेन। अगर हम इसके 1-2 यूज देखना चाहें तो एंजाइटी, डिप्रेशन और वीकनेस के नर्व्स में बहुत हेल्प करता है। जब हम कहते हैं हमारा नर्व्स बहुत कमजोर है, नसें कमजोर हैं, सुन्न हो जाती हैं, तो हमें कैसे लेना है इसको? आधा चम्मच से 1 चम्मच आपको जो है एक दिन में सुबह शाम लेना है इसका पाउडर, और इसके रूट्स का पाउडर। तो इसके रूट्स को सुखा के उसके पाउडर का सबसे ज्यादा उपयोग है अश्वगंधा का। तो हम क्या करेंगे, आधा चम्मच सुबह शाम या 1-1 चम्मच अपनी जो हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से। और अगर आपकी ज्यादा कुछ भी शरीर में है, कुछ जो है इम्बैलेंसेस हैं जैसे वात, पित्त, कफ के, तो जरूर से हम डॉक्टर को तो दिखाएंगे, नाड़ी परीक्षक को। लेकिन अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है, अगर आप थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच बीच बीच में 1-1 हफ्ते खुद से भी लें तो ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। ये शरीर में ओजस बढ़ाता है, ओजस से हमें इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी, जिसके शरीर में ओजस अच्छा है तो वो इम्यूनिटी अच्छी है। और ये हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। और जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छा है। जोड़ों के दर्द में अश्वगंधा को हम सौंठ के साथ ले सकते हैं। जिंजर पाउडर आधा चम्मच, अश्वगंधा आधा चम्मच, सौंठ को मिला के हम सुबह शाम ले सकते हैं। इसको दूध के साथ, घी के साथ या हनी के साथ ले सकते हैं। और हम इसका एक प्रॉपर्टी हम इसको और बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इसको अगर हमारे को बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहती है, वीकनेस रहती है, घबराहट रहती है, तो अश्वगंधा लेने से हमारे शरीर में वाइटैलिटी होती है। एंड इट इज ऑल्सो अमेजिंग हर्ब फॉर फर्टिलिटी। सो दैट इज अबाउट अश्वगंधा। तो ये जो मैंने बताया है डिप्रेशन और जोड़ों के दर्द में जरूर लीजिए। नाउ राखी जी, कैन यू शो शतावरी?
शतावरी एक बहुत सुंदर हर्ब है, और आपको मालूम है क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि अगर जिसके घर में शतावरी है उसके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, जो भी औरतें हैं, वो हमेशा हेल्दी रहेंगी। सिर्फ शतावरी घर में रखने से देयर वोंट बी एनी फीमेल प्रॉब्लम्स। तो ये पौष्टिक है, ये त्रिदोष नाशक है, ये वात पित्त कफ तीनों को ठीक करती है, और इसकी जो है इसके रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके रूट्स को पाउडर करके अगर कोई भी फीमेल आफ्टर डिलीवरी लेती है तो इट इज सेड टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ मिल्क फॉर द बेबी, एंड दैट इसका ये बहुत अच्छा यूज है शतावरी का। किसी को भी फीमेल कोई भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, तो यू कैन टेक इसका आधा चम्मच सुबह शाम शतावरी पाउडर, या आप एक टैबलेट ले सकते हैं जो हमारे श्री श्री की भी आती है, और अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक इट्स पाउडर ओनली इफ यू हैव द हर्ब एट होम। और स्ट्रेंथ के लिए इसको हम दूध के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ शतावरी के थोड़े आधा चम्मच को मिला के। ये एक ऐसी हर्ब है जो तुलसी, नीम, टर्मरिक की तरह जिसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा शतावरी ले रहे हैं तो आपके लाइफ में आप बहुत अच्छा रहेगा, एंड इट हेल्प्स ऑल द फीमेल्स फॉर एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका एक गुण और बताना चाहूंगी इंसोम्निया का। तो इसको हम 10 ग्राम पाउडर को इसको हम दूध में पका लें खीर की तरह, और हम रात को ले लें थोड़ा मिश्री के साथ, तो कितना भी गहरा इंसोम्निया है हमारा ठीक हो जाएगा। कैसे? हमने इसके जो है पाउडर को लिया, about 10 gram powder, and we just boil it in the milk and make a thick खीर की तरह, और इसमें मिश्री मिला के ये हमें बहुत ही फायदा करेगा। अब we can come to अपराजिता। अपराजिता को हम लेते हैं। आई एम टॉकिंग फर्स्ट अबाउट मोर अनयूजुअल, क्योंकि जैसे पुदीने इन सब के आप सभी लोग को पता यूजेस। अपराजिता अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल जो हर्ब। इसका नाम अपराजिता क्यों है? क्योंकि ये कभी किसी को पराजित नहीं होने देता। Nobody can be failure, nobody can lose if somebody is having this herb। और ये माइग्रेन के लिए बहुत ही सुंदर हर्ब है। इसके जड़ के रस को अगर हम नाक में 3-4 बूंद डाल लें तो 3-4 दिन डालने से हमारा, कुछ लोगों का तो सर दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर आपका क्रोनिक भी है तो आप कुछ दिन यूज करते रहें इसके जड़ के रस को, इसके रूट के रस को, just 4 drop in both the nostril, and you can cure your headache। माइग्रेन में भी जड़ को पीस के माथे पे लगा सकते हैं। बहुत माइग्रेन हो रहा है तो उसके रूट को पीस के माथे पे लगा ले। इसमें कुछ चीजें मैंने खुद में यूज की हुई हैं। ऑफ कोर्स मैंने माइग्रेन मुझे नहीं होता, बट माय सिस्टर यूज्ड टू हैव, आई यूज फॉर हर। और रेगुलर फीवर में भी इसका बहुत है। इसके जड़ को उबाल के इसका पानी पी सकते हैं। तो देखिए एक हर्ब है जिसके फूलों को हम देखते हैं और हमने खुद नहीं जाना। एंड लास्ट आई विल टेल यू अबाउट इसके कफ, खांसी में इसकी 4-5 काली मिर्च के साथ इसके रूट को बॉईल करें, और 2-3 तुलसी की पत्ती, 4-5 काली मिर्च, 2-3 तुलसी की पत्ती, और इसको अपराजिता के कुछ रूट्स को लेके क्रश कर लें, पानी में बॉईल करें। इसको आधा बॉईल करके आधा कर लें और फिर इसको लें तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वी नो अबाउट तुलसी, वी नो अबाउट काली मिर्च, एंड अपराजिता को हम इसमें कर सकते हैं। तो सम ऑफ अस, ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टेल यू इन आवर कोर्स व्हेन यू जॉइन आवर होम गार्डनिंग प्रोग्राम। राखी जी हिबिस्कस को दिखा दें। And we all have to wait because Ritu ji have got amazing tea. So I will think I'll just take one more herb because there's lemongrass also, pudina also. And I have just written my favorite, things which I've used. Hibiscus powder, ये तो बहुत ही अच्छा आजकल ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। It has very high vitamin C and it reduces cholesterol and triglycerides, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अनीमिया, किसी को खून की कमी है, एनीमिया है, तो 1/2 टीस्पून पाउडर विद मिल्क हम ले सकते हैं। इसके आधे चम्मच पाउडर को दूध के साथ लेके इससे एनीमिया, इसके फूल के पाउडर को हम ले सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि गॉल ब्लैडर स्टोन या हमारा किडनी स्टोन हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये इसके लिए बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट आपको इंटरनेट पे इसका बहुत रेसिपी मिलेगा। तो इसको क्या करना है, इसके 1 टीस्पून को हॉट वाटर में एक ग्लास में लेके और इसको 3-4 दिन तक पीते रहना है। आई थिंक हिबिस्कस पाउडर, ऋतु जी
हिबिस्कस टी के लिए बताएंगी, तो आप उनसे हिबिस्कस टी बनाना सीखिएगा। बट अगर हम इसके 1 टीस्पून को हॉट वाटर ग्लास में 1 ग्लास गर्म पानी में पीते हैं तो हमारा 3-4 दिन में स्टोन निकल जाएगा, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो चाहे वो किडनी में हो। एंड नाउ आई विल नॉट टॉक अबाउट मिंट, बट जस्ट लेमन ग्रास का मैं आपको 1-2 चीज बता सकती हूँ। इट्स पेरिनियल, इट्स एरोमेटिक, एसेंशियल ऑयल इसका बहुत फेमस है। आप किसी भी होटल्स में जाएंगे तो लेमन ग्रास आपको जरूर आएगा आपके फ्रेग्रेंस में। और ये एक स्टिमुलेंट है, टॉनिक की तरह काम करता है। अगर आपको गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, तो इसके ऑयल को 3 से 6 ड्रॉप हम अगर डाल लें और शुगर मिश्री के साथ मिला सकते हैं या हम गर्म पानी में ले सकते हैं, तो हमारे पेट जो फूल रहा है, फ्लैटुलेंस खत्म हो जाती है। और इसके फीवर में इसको जो है, जब फीवर में जब हमें लेते हैं तो इससे पसीना आता है और उससे फीवर डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसका रॉ जूस लेना है। वी कैन टेक रॉ जूस ऑफ द लीव्स ऑफ लेमन ग्रास। एंड द लास्ट अबाउट लेमन ग्रास इज जॉइंट पेन। व्हाट वी डू इज, हम जॉइंट लेमन ग्रास को लेके लेमन ग्रास के ऑयल को ले लें और उससे डबल कोकोनट ले लें। डबल कोको, जैसे अगर हमने 1 चम्मच लेमन ग्रास का ऑयल लिया है तो 2 या 3 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लें और उसको पेनफुल एरिया में लगा दें, तो हमारा जो भी पेन है बहुत ही जल्दी चला जाएगा। And it is also known for menstrual pains. So because there is so much to say and Rituji is there with many wonderful teas out of these herbs, तो हम पुदीने के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि पुदीना ठंडक देता है और स्किन के लिए अच्छा है और हमारे पॉइंट पे बॉडी पेन, बहुत सारी चीजों के लिए पुदीना हम we know about mint benefits of mint. And with that, if you want to know more about, there is one request from all of you. आप लोग जो लोग और जानना चाहते हैं अपने फोन नंबर्स छोड़ देंगे तो we can form a group and we can then give you more solution. We can tell you more about these herbs, and also for our home gardening program. At the end, we will give you the details, and those who want to join can then leave their phone numbers. Now over to Rituji. Rituji, I know we all are waiting for your wonderful herbal tea. Thank you, Savita ji. She's our yogi mom. Okay, she's such a wonderful lady, and she's such a wonderful friend, mother, and she's all into yoga. और इनकी पूरी जो लाइफ है ना वो इन्हीं चीजों में रहती है. So it is always wonderful listening to her, and you get so much. इतनी सी देर में इनसे इतना कुछ मिल जाता है सुनने को भी और अंदर नॉलेज लेने को. Thank you so much, Savita ji. So I think after this 40-45 minutes of a session of knowledge, let's just get into having some good refreshment for us. Yes. So yeah. I'll just quickly, it's going to be 2 or 3 tea that we will see here. देखो अभी immunity के ऊपर बहुत बात हो रही है. In these last 4-5 months of COVID, हमको बार-बार सब लोग बोलते हैं कि immunity बढ़ाओ, है ना? Immunity बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? गर्म पानी जरूर पियो दिन में 2 या 3 बार. अब प्लेन गर्म पानी पीना बहुत अच्छा नहीं लगता ना. It's too bland. So this is the best way of having garam pani and infused with so much of good health. Lemongrass के अपना फायदा है, हिबिस्कस का अपना फायदा है. अभी हमने वो जो एक बहुत खूबसूरत सा फूल देखा है अपराजिता, उसकी चाय का अपना फायदा है. So you actually are building on your immunity, and at the same time you are taking full advantage of all the herbs that are present in our gardens, and we probably have just not given them too much of importance. But right now in this lockdown, this has been the excellent opportunity for all of us to get used to new things. And in this last 4-5 months only, मैं एक लेमन टी पीती थी, लेमन ग्रास टी. वो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती थी. ये तो लेमन ग्रास है, हाँ जी. और मैंने for just 1 cup, this is all that we need. और इसको हम वाटर में पानी लेके 1 कप पानी में इतना सा लेमन ग्रास लेके और 2-1 मिनट को उबाल लेते हैं. We just boil it for 2-3 minutes and the color changes to a beautiful green.
you'll have to just bear with me. I will show you the whole process. ये मैंने यहाँ boil कर लिया है and I'm just going to pour it. It's a very faint green color which has come. I hope it is visible. सबको दिख रहा है ना? Yeah, Ritu ji, it's visible. So this is all it takes. आपको गरम पीना है तो बॉइल्ड पी सकते हैं, और अगर आपको इसको इन्फ्यूज मतलब ऐसे आपने ठंडा करके रख लिया और अपने फ्रिज में बॉटल्स में रख ले, मैं तो इसको घड़े में भी डाल लेती हूँ ऐसे ही इस पानी को. माय चिल्ड्रन व्हेन दे गोइंग टू वर्क दे कैरी दीज बॉटल्स विद देम, पूरा दिन वो इसी पानी को पीते हैं एंड दे फील दैट दे बिकम यू नो, इतना काम करते करते में बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो जाता है. देयर इज नो कैलोरी टू इट. आई एम फ्रॉम द न्यूट्रिशन फील्ड, तो मुझे जरा ध्यान रहता है कि चीनी नहीं जानी चाहिए. तो ये इसके अंदर रिफ्रेशिंग है और इसके अंदर कोई कैलोरी भी नहीं है एंड दे फील अगेन एनर्जाइज्ड. प्राणा बढ़ा देता है जैसे. सो दिस इज अबाउट लेमन ग्रास. दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट. सॉरी फॉर इंटरप्शन. इसी बात पे मुझे एक बात याद आई. अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी थप्पड़, तापसी पन्नू उसमें हाउसवाइफ का रोल किया था, इफ यू रिमेम्बर. इसमें वो एक, जब भी वो चाय बनाती है अपनी किचन की बालकनी से वो थोड़ी सी पत्ती काटती है और चाय में डालती है. बिल्कुल. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना टू शो इन मूवी. सो उतना ही आपको रेशियो चाहिए एक्चुअली लेमन ग्रास का. हाँ, बस एक पत्ती इतना सा ही आपको चाहिए फॉर अ कप. फॉर इवन one full flask, 1 liter also, this is more than enough. Now what we will do is, our next cup is going to be about अपराजिता flowers. तो हम ये अपराजिता के 5 या 6 फ्लावर्स लेके धो के ऑफ कोर्स कप में रखेंगे और इसको गर्म पानी डाल दो. And then we will just let it remain for some time. इसको infuse होने देंगे इसमें. We'll just keep it for some time. Meanwhile, you can see the change in color coming. Right. Visible है? It's so beautiful. Yeah, this is so beautiful. And somehow अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी blend कर रही हूँ इसके साथ में. Okay, so we'll just let this infuse for a while and we will do hibiscus. ये वाला hibiscus भी use हो सकता है. ये भी बिल्कुल देसी गुड़हल या इसको जबा कुसुम भी बोलते हैं. वो उसको हम क्या बोलते हैं, पंचमुखी. जो पहले वाला दिखा रहे थे वो पंचमुखी है और ये वाला हमने इसका पोलन्स वाला बिट निकाल दिया. और इफ यू वांट ये भी नीचे का हटा दिया. फिर से गर्म पानी लिया. In some time, the color will start changing. This is for Gudhal. Meanwhile, our Aparajita tea is just getting ready. It's nearly done. What we can do is add a bit, maybe 1 or 2 drops of honey also to it. And इसमें एक बहुत marvelous चीज होती है. This is lemon. What I am going to do is just observe the color change. I am going to just add 1 or 2 drops of lemon to it.
the color is coming towards purple. पहले blue था, अब वो purple की तरफ आ रहा, pinkish purple. नीचे देखें. So it becomes like it's looking so beautiful. It is beautiful and gradually ये पूरा अभी आप देखेंगे पिंक कलर का हो जाएगा. It's magic. Yeah. Absolutely, absolutely. And Aparajita tea is actually a stress buster. Anxiety अगर हो रहा है और आप अगर इस कप को सिप सिप करके पी लेंगे, believe me, stress vanishes. So here's actually to all our stress goes away. Let's just That's so nice. start with Aparajita tea. Okay. अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी रितु जी, जो अपराजिता के फूल होते हैं उनको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं. लाइक आई डू ऑफन. एक या दो आप इसको फूल खा लें और इसका लाइट स्वीट होता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है. तो चलते फिरते यदि केमिकल फ्री है आपका गार्डन तो यू कैन ईट. थोड़ा वॉश करो एंड वो भी बहुत अच्छा रहता है. Like Rakhi ji, I also take lot of times I eat rose petals, desi जो गुलाब होते हैं, and I love eating them. It's got a very good feel, ना? हाँ, right. So here again we are seeing this. ये hibiscus का भी बहुत अच्छा हो गया है color. It's pale yellow. It's towards pale yellow. The flower, the petals are still there, but it is pale yellow. And again, this is health plus beauty. Hibiscus का आप फ्लावर को अगर खाते भी हैं या आप उसको ड्राई करके अपने हेयर पे भी लगाते हैं, ऑयल में भी इन्फ्यूज करते हैं, this is very good for preventing hair fall and also preventing hair getting gray. But don't look at my hair. No, but you have such a grown. Her daughter is an IFS officer, तो I mean इतना तो grey होने से graceful लगता है ना. चलो ठीक है. Thank you. Yes. So this is about the two teas that I have them every day. The whole family actually has. 2 या 3 बार हम दिन में इसी तरीके से लेते हैं. और लेमन ग्रास is like it is there in our bottles. 1 लीटर की बॉटल ऑफ लेमन ग्रास वाटर तो हम लोग सब लोग पीते ही हैं. एंड सबसे अच्छा इसका मुझे ऐसा मतलब दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर 4-5 years of regular use, that your energy levels are very good. You never feel that you're tired. गर्म पानी आपने सविता जी ने भी बताया था ना, गर्म पानी पीने से आपने कोई टीका बताया था ना जिससे कि बुखार भी अगर हो रहा हो तो वो हट जाता है. लेमन ग्रास. हाँ, लेमन ग्रास. ये एक्चुअली क्या है, गर्म पानी का एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि इट रियली गेट्स यू दैट एनर्जी. पसीना छूट जाता है, विच इज अगेन बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है और उनको पसीना नहीं आता है, बट गर्म करने पानी पीने से आपका यू स्वेट एंड दैट स्वेट रिलीजेस अ लॉट ऑफ योर स्ट्रेस. सो एज अ like this is a very good health tonic for everybody. I think Ritu ji, it's beautiful and इसी से related there's some question by Renu ji. Any color of Aparajita can be used in this tea? We are using blue. Okay. We are using blue only because this is very attractive to look at. Yes. But I'm sure white also can be used. I am using all the colors of blue. I have a light blue color also, Aparajita at home. I use that also. Yeah. Or benefits वही हैं. Benefits वही हैं. Seema ji has given a cute suggestion to put lemongrass in your blue tea. Yes, we can put. And she's somebody has asked Renu ji, what time should we take this tea? You can take them whenever you feel the urge to have tea, normal milk wali. Okay. So it replaces the
it replaces your milk tea, which actually gives a lot of acidity. Can any color of hibiscus be used? I would prefer the desi, the normal, जो हम लोग यहाँ लेते हैं. Yeah, the red ones. The red ones. Yes, yes. Jaba kusum. Yes. And there's one more question. There is a suggestion that we can add them to mocktails also. Yes. में हम कर सकते हैं. Can we mix up hibiscus and aparajita flowers together? You can, but then it is always better to have one at one go. Yeah. Okay. So it gives you more variety. And thanks for giving so many phone numbers. We'll make a group. We'll add you to a group, and then you can ask more questions. And both my friends have, they are storehouse of knowledge, and they can like really, we all can give you a lot of more, and of course learn from you all also. And I think almost everybody has given the phone number, their numbers. Now there's one question: how to make oil of lemongrass? Okay, lemongrass ka oil actually Rakhi ji, would you like to add on it? Yeah, see, lemongrass का oil आप इसको दो तरीके से बनाया जाता है. पहले तो इसको ऑयल में कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसको उसमें वार्म कीजिए, right? So that is the easiest way to get the lemongrass properties in the oil and then use it. And secondly, it's घर पे इसको निकालना is very difficult, and उसमें आप ना ही जाएं तो that is a long process. काफी quantity चाहिए. But the simplest way is थोड़ा सा आप coconut oil लें और any oil जो भी आप use करना चाहते हैं उसको थोड़ा warm oil में dip करके और थोड़ी देर रखें तो फिर आप उसको use करें. That is the best way. योचना जी has asked कि वो green leaves, हम जो hibiscus tea बनाते हैं उसके flowers से बनाते हैं, leaves से नहीं बनाते, but leaves have other use, many different things हैं, but हम उसका जो what do you say राखी जी, leaves hair fall के लिए भी I think it's good. हाँ जी. इसके leaves का same way जैसे मैंने अभी लेमन ग्रास का बताया, इसी तरह से आप leaves को थोड़ा हाथ से क्रश करके oil में गरम कर लीजिए and then use that oil. और दूसरा तरीका है आप oil में इनकी leaves को dip करके sun में रख दीजिए. So उसकी जो properties हैं आपके oil में आ जाएंगी, then you can use that oil for scalp. That I also use. I put lot of herbs, but whichever I want in my oil, and I just keep it in sun, and then over some time the oil changes color, and it's very nicely or aromatic and very healthy. There's some questions related to also planting. What is the time of planting of Aparajita stem cutting? See, अपराजिता का जो best time होता है वो है जून जुलाई. इसमें आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या कहीं से स्टेम लेके लगा सकते हैं. Does Shatavari have thorns or spikes? जो मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, जिसमें लंबे रूट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा वो स्पाइक्स होते हैं उसमें. Okay. That is, हाँ, उसमें spikes होते हैं, right? Okay, there is no certificate for this, but I would like to tell you that there's a recording. We will put it on the YouTubes also. राखी जी के YouTube में भी होगा, मेरे भी. And then just now अभी ये live Facebook पे आ रहा है, तो हम live Facebook पे भी इसकी recording देख सकते हैं. It's being streamed on my Facebook, and the recordings will be there in all our YouTube channels. There's one question: how to show ashwagandha seeds? Please guide. राखी जी, आपसे क्वेश्चन है, अश्वगंधा सीड्स को हम कैसे सो कर सकते हैं? इसको आपने कभी टमाटर के जैसे सीड सोक किए होंगे, सेम वे आप इसको सॉइल के ऊपर आप Any more question? Yeah, there is one more question. How to propagate kadi patta? How to propagate? Again, इसका सीड इसमें निम्बोली बनती है, लाइक जैसे नीम में बनती है, इसी तरह से इसमें भी सीड होता है.
उस सीड से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, जहाँ इसका प्लांट होता है उसके नीचे कई बार अपने आप ही प्लांट्स निकल आते हैं, उसको भी आप केयरफुली निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। Okay, okay. It's got a very sensitive root system, so right now इसको निकालना जो है वो बहुत केयरफुली निकाल के लगाना होता है। तो बेस्ट इज टू पुट अ, अभी रेनी सीजन में काफी इसके निकल आते हैं। यदि यू ऑलरेडी हैव देन यू कैन गेट मोर प्लांट्स, और नहीं है तो आप इसके सीड से आप ले सकते हैं। Okay, so that way Nishi ji has said moringa is left. Lot of question herbs have been left. हमारे पास तो खजाना है इंडिया में herbs का, हमारे आयुर्वेदा में तो बहुत सारे, हमने तो बहुत 5-6 लिए जैसे सैंपल। In fact today I was telling Rakhi ji, you make a series of these like you know these videos and webinars, तो हम हर एक एपिसोड में 5 herbs लें और उसके सारी चीजें एक्सप्लोर करें। इनफैक्ट एक herb भी हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। What do you say, राखी जी? बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ कम बढ़ जाएगी इसके लिए ना। Okay, stem इतनी नॉलेज है, इतनी है बस क्या। हाँ, I've heard it's good to apply aloe gel on the stem of curry stem and soap for curry patta. So this Rakhi ji can answer better. Sorry, aloe gel stem curry पत्ता के स्टेम में एलोवेरा का जेल लगा के अगर सो करें तो शायद क्या जल्दी होगा क्या? No, na? You can try it. See, nature is, so yeah, you can try it, definitely. And, I haven't yet, but you can try and share the outcomes. Yeah. Okay, the last thing is, can we use shatavari leaves? We are using roots of shatavari. Can we also use shatavari leaves? नहीं, इसकी रूट्स ही काम आती हैं। Okay, so now I would request Pari, can you put our screen of our course? So I would like to tell all of you a wonderful thing that of course there's some things we have shared with you, but there are lots to share, right from growing, how to prepare the soil, how to choose seeds, how to use natural manure, natural fertilizers, how to use natural pests. मतलब हम natural farming के कोई भी पेस्ट को हम मारते नहीं हैं, हम उनको बस चेज कर देते हैं, वी ड्राइव देम अवे एंड वी पुट जी जो हमारे घर में बने हुए जैसे छाछ है और कुछ अगर आपके पास एक्सेस है गाय का तो गौमूत्र या इन सब से बने हुए हम नॉर्मल जो ऐसे पेस्टिसाइड यूज करते हैं जो ना हमें हार्म करेंगे, ना हमारे पेड़ों को हार्म करेंगे, ना प्रकृति को हार्म करेंगे, और कोई भी हम पेस्ट को मारते नहीं है, उसको भगा देते हैं। तो ये बिल्कुल ही अहिंसा वाला वे है। This is a way of growing food without killing any animals, any pest, and it's a beautiful. तो हमारे ही जो होम गार्डनिंग प्रोग्राम जिसका भी मैंने पिक्चर लगाया और हम तीनों मिल के लेंगे क्योंकि ये नॉलेज इतनी इमेंस है और हम जितना बांटते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। All the Rakhi ji and Ritu ji are storehouse of knowledge, and we all through natural farming, like आप अपने घर में अगर आपकी छोटी सी बालकनी है, छोटी सी छत है, छोटा सा आपका जो है कोर्टयार्ड है, गार्डन है, आप उसमें इतने सारे हर्ब्स और इतने सारे वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। और कैसे उगाना है, from the seeds to soil mixture to how to sow, what season का कैलेंडर हमारे उसका, ये सारी चीजें हम अपने इस कोर्स में सीख सकते हैं। तो आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस, और जो लोग भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो लोग, मैं सभी लोगों का नंबर एक ग्रुप में डालूंगी, एंड इनफैक्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स शुड जस्ट जॉइन द कोर्स. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th and it is till 16th, and then after that also whatever you will be like in our group, there'll be hand holding, whatever your questions will be always answering. You can also have a visit to Rakhi ji's farm sometime when the lockdown is over. So now I'll request Rakhi ji, would you like to add anything? या मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे हमने अभी सब सीखा कि कैसे प्लांटेशन करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हाउ टू सस्टेन गार्डन्स. हम प्लांट्स ले आते हैं नर्सरी से, उसको घर में रखते भी हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते. तो ये भी एक आर्ट है एंड साइंस है
and then you must know the A to Z of gardening. तभी आप long term sustainable and easily gardening कर सकोगे. Otherwise you keep depending upon मालीज, और मालीज के जो आइडियाज होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, वो मिट्टी बदलवाते रहते हैं आपकी, खूब केमिकल डालते हैं आपके घर में भी, उससे केमिकल पॉल्यूशन होता है, और प्लांट्स आपके इतनी क्लोज विसिनिटी में होते हैं, तो दे इंस्टेड ऑफ आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो आपको कई बार हार्म भी कर सकते हैं व्हेन यू यूज केमिकल इन योर होम गार्डन्स. So if you do this course, you will come to know all about sustainable gardens, how to sustain good, healthy, chemical-free gardens, that too at a very, very, reasonable cost. And then you can be your own gardener. You can be the owner of your own garden. Then, so मैं तो सभी से ये कहूँगी कि सिर्फ लगाना ही जरूरी नहीं है, उसको सस्टेन करना जरूरी है. तो उसके लिए आप ये कोर्स करें, और हम लोग 14, 15 और 16 को ये कोर्स ले रहे हैं. So do join everyone. I would also invite Ritu ji now. Ritu ji, you can also add something. See, in whatever this journey has, given me, I would like other people also to experience the same. From my rooftop to the farm. ये पूरा का पूरा जर्नी में मेरे को जो भी कुछ उगाने का मौका मिला, और उसका प्रोड्यूस भी मैंने अपने आंखों में देखा. मेरे घर, मतलब इट हैज कम फ्रॉम द टेरेस, फ्रॉम द फार्म टू माय किचन, टू माय टेबल, एंड द फैमिली इज हेल्दी. और तो शायद हमको कुछ चाहिए नहीं, अगर डॉक्टर से बचे रह जाए, यही चाहता है हर जना कि डॉक्टर से बचे रहे. सो आई वाज अ hypothyroid patient, and for the last 7 years that I am doing this intensively, I have become conscious of getting things which are naturally grown to my home, and I think that has helped me overcome this thyroid thing also. So मुझको ऐसा लगता है कोई भी knowledge जो है वो अगर आप उसको implement 10% भी कर लेते हो practically, but that 90% remains here, and anytime it can be nurtured and got back into use as a practical. So ये वाली जो नॉलेज है इसको आप ले लोगे. आपको लग रहा होगा शायद मैं अभी गमला नहीं अरेंज कर पाता, कोई बात नहीं, that knowledge will remain. वहां पे आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जो आपको उसका I'm sure 80% you will be able to use in your homes. So that is, Ritu ji, I fully agree with you. आपने जो बोला ना, मैं अपना experience इसलिए बताती हूँ कि I've been doing yoga for 33 years and so many things I've learned which I may not be using. लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो मुझे फट से याद आता है. उससे भी ज्यादा कोई और मुझे बोलता है ये हेल्थ प्रॉब्लम है, and I immediately tell them, ये आसना करो. या फिर even herbal में, herbs में, अभी मैंने अपने श्री आयुर्वेद तत्व पंचकर्मा के करीब 20 around 15 webinars मैंने एंकरिंग की है, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा. तो आपने जैसे कहा ना कि हम सब कुछ अप्लाई नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में मैं 15-20% ही अप्लाई कर पा रही हूँ वो सारे वेबिनार से जो सीखा. लेकिन जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता है, आई इमीडिएटली रिमेम्बर दैट एंड आई टेल इट टू अदर्स, आई शेयर इट द नॉलेज विद अदर्स एंड माई सेल्फ ऑल्सो. तो वो मुझे काम आ जाता है. इसलिए मुझे ये लगता है कि हम जब भी कुछ ज्ञान लेते हैं वो वेस्ट नहीं होता है. इनफैक्ट वो हमारी अवेयरनेस बढ़ाता है और समय पे हमें वो उसको हमें empower कर देता है. So I would request all of you to join this program because this is a whole beautiful world through natural farming. फायदे क्या हैं कि हम अपने घर में ही कुछ अपनी जो बिल्कुल नेचुरल वे में केमिकल फ्री हम सब्जियां और हर्ब्स उगा सकते हैं. सेकेंड फायदा है कि इससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हैं, और जितना भी हमारा किचन वेस्ट है इसमें हम ऐसे दिखाते हैं, कंपोस्टिंग एंजाइम्स बनाना सिखाते हैं, जिससे आपका पूरा almost 80% of the kitchen waste you can recycle, and 100% also if you are really working hard. नहीं तो 80% kitchen waste तो हम अपने cities को गंदा नहीं कर रहे हैं, हमारे cities में हमारा घर का एकदम garbage नहीं जा रहा है. साथ में हम अपने इस पूरे पर्यावरण में धरती माँ को हम कहीं पे भी हम contribute नहीं कर रहे हैं chemical में, तो हम उसको chemical free रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने खाने को chemical free उगा रहे हैं, अपने खुद बॉडी में केमिकल फ्री खाना दे रहे हैं, अपने को हेल्दी रख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को मिट्टी, पानी, हवा सबको हम शुद्ध रखने में
कुछ सहयोग दे रहे हैं. तो इस पृथ्वी के लिए ये बहुत ही सुंदर, इसमें किसी का लॉस नहीं, सबका विन विन है. फ्रॉम आवर ओन हेल्थ till the whole health of the planet, there is a win-win situation. And I would request all of you to just join and even share this with others. They all can come, and I can vouch, this is my guarantee, because इतने प्रोग्राम लेने के बाद मुझे पता है जो भी ये प्रोग्राम करता है वो लगता है कि oh my god, जितना सीखा है that was amazing, and मतलब this is the best course I have done. So I think like, you know, we all say after learning Sudarshan Kriya, this is the best thing we have done. So here also, when you learn this happiness program, this home gardening program, you say this is the best thing I've done. So I think I again request Rakhi ji for giving her time, valuable time for this webinar, Ritu ji, and we all are, you know, हम एक साथ चल रहे हैं इस मिशन को सब तक ले जाने के लिए, because none of us are, you know, doing this job. We all are doing voluntarily, and we all have passion to save environment and to do natural farming and lead a very healthy life. I think with that we can close the webinar. If Rakhi ji want to add anything, please add. Thank you, Savita ji. Thanks, and it's an honor to work with you and for this cause also. And I'm so glad that we are getting this opportunity again to propagate this knowledge. And thanks everyone for joining this webinar. And do share your experiences, your views about the webinar, and your whatever you do after this. Thank you, Rakhi. Thanks everyone. Thanks Rituji. Thanks Savita ji. Thank you. Thank you. So I'll just end with this, that this is the Independence Day program which we are taking all over India. So धरती माँ के लिए, अपने भारत देश के लिए हम इतना जरूर करें, कि अपने आप को मतलब प्रकृति से जोड़ें और धरती माँ को बिल्कुल रसायन मुक्त करने की एक प्रतिज्ञा करें, और इसीलिए ये वाला कोर्स जरूर ज्वाइन. And I must tell you that my both friends are so busy, but still they are taking, because they have their own, engagements. Like Rakhi ji's daughter is giving her 12th, and Ritu ji's daughter is leaving for Germany on 16th, and she has to pack everything for her. In spite of that, when I requested them, they got ready for this program. It just shows their passion, their love for this, teaching this, and you all will become passionate, and within a year, all of you also will become agri teachers, I'm sure. Thank you so much. Yeah. Thank you very much. Thanks everyone. Bye. Jai Gurudev. You can leave your experiences here. This is on for a few minutes. You can leave your experience, and आपके questions भी हम group में answer कर देंगे once we make the group. You can leave your experiences.